पेन Hello everyone, good morning all of you. I hope you are fine. Now today we are starting our next chapter with current electricity. In last class we discussed their electrostatic, some question PYQs of the electrostatic. Today we will discuss current electricity second unit of our physics. Okay. Now see our first question. A battery supplies 0.9 ampere current. A battery supplies 0.9 ampere current through a 2 ohm resistor and 0.3 ampere current through a 7 ohm resistor. Then when connected one by one, then find their internal resistance of the battery. Okay, so here we have to find out internal resistance of the battery. How we can find internal resistance? First we should know about the relation between electric potential and in our EMF. EMF means electromotive force. That is not force, this is a potential in our open circuit. Okay, till now we are not connecting this battery with any external source. जब तक बैटरी को किसी external source के साथ कनेक्ट नहीं किया जाता, उस टाइम पे जो उसका पोटेंशियल होता है, उस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं? EMF, electromotive force. Okay, EMF, E. In our open circuit, and when we will close this one with our external source, means with resistance we are connecting with it, then this one we will be convert into our V only, that is we will call it electric potential. Okay, तो क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन आपकी गिवन है कि दैट इज अ बैटरी, एक बैटरी गिवन है जिसका EMF लेट वी आर अज्यूमिंग देयर EMF. क्लियर? तो इस बैटरी को एक बार क्या है 2 ओम रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया जा रहा है. एज वी आर कनेक्टिंग विद 2 ओम, देन इट विल सप्लाई देयर करंट 0.9 एम्पियर. कितना करंट सप्लाई हो रहा है? 0.9. सो इन फर्स्ट केस वी कैन राइट देयर I1 इक्वल टू देयर 0.9 एम्पियर and this one current passing through the resistor whose value given here 2 ohm. जिसकी वैल्यू क्या गिवन हमारे क्वेश्चन के अंदर 2 ohm गिवन है. And another 0.3 ampere current we are passing through the 7 ohm resistance. This one resistance we are taking 7 ohm, then its current we are passing through 0.3 ohm. इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना कर रहा है? 0.3 एम्पियर. अगर हम 2 ohm का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं, then their current is flowing there 0.9. Okay, so second case we can write there I2 equal to 0.3 ampere, then R2 we can write there 7 ohm. We can write there 7 ohm resistance. Okay, so internal resistance of the battery we have to find out. Then internal resistance of the battery we have to find out. So first we should know about this one relation between EMF internal resistance and this one external resistance, relation between them. So here as we know about this one, as we know, then E equal to here V plus IR. E, where E is a total EMF, V is our electric potential, I is current, and small r is a internal resistance. So here E equal to V plus IR we can write there. After this one here EMF, here we are connecting this one battery only we are using, then just we are changing the resistance with respect to this one. So EMF क्या रहेगा? दोनों के केसेस में सेम रहेगा. अगर यहाँ E assume कर रहे हैं तो with respect to this one also here EMF E only. So here we can write this one with respect to first case. In this case we can write there E equal to V, we can external resistance R given, so we can change use Ohm's law. V equal to IR plus here IR. So I1 first case R1 I1, your internal resistance here R only we are writing. Okay, now internal resistance होता क्या? That is a resistance between the ions in our battery. बैटरी के अंदर जो ions होते हैं, जो flow करते हैं, जो resist करते हैं, that is called as the internal resistance. small r से denote करते हैं. So in that second case here if we are writing its value, then we can write there 0.9
taking common I1, so inside we can write their capital R 2 ohm plus your small r, this one here EMF along the first case. Now second case given here, this one down along this one we are writing E equal to, same we are following there, current 0.3 ampere, current 0.3 ampere, and inside your R1 R2 plus R, R2 given हमारे पास 7 plus here small r value given, not given, this we have to find out, so keep as it is. One battery only, so with respect to this battery internal resistance and EMF both will remain same only. Okay, so E equal to 0.3 R plus R. Now here we can write this one first equation, here this we can write their second equation. Now from both first and second equation, now here we can write their from equation first and second, from equation first and second we can write their 0.9 and 2 plus R, here 0.3, here 7 plus R we can write it. Clear? So here we can write there, cancel out this one, 3 3s are 9, 3 only, so 3, 2 plus R, and here R plus here R. This only left now, so here 6 plus here plus 3R equal to your 7 plus R. स्मॉल r की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यहां से क्या आएगा 6 माइनस 7, या इसको इधर ले जाओ 3r, इधर r है 3r माइनस r 7 माइनस 6, तो यहाँ पे सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 2r इक्वल टू यर 1, देन r इक्वल टू यर 1/2, तो r की वैल्यू क्या आ गई, हमें r ही निकालना था इंटरनल रेजिस्टेंस की। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि एक ही बैटरी है, सेम बैटरी वी आर यूजिंग विद रिस्पेक्ट टू टू रेजिस्टेंस, एक बार उस बैटरी को क्या है 2 ओम रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और एक बार उस बैटरी को किसके है 7 ओम के साथ अटैच कर रहे हैं। जब हम 2 ओम के साथ अटैच कर रहे हैं तो उसके अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है 0.9 एम्पियर, अगर उसको 7 ओम के साथ अटैच करें तो करंट कितना फ्लो कर रहा है 0.3 एम्पियर। क्लियर? सो 2 केसेस विल बी फॉर्म, फर्स्ट केस के अलोंग हमारी ये आ जाएगी, सेकंड अलोंग के अंदर हमारी इक्वेशन ये आ जाएगी। अब हमें पता है कि दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों के अंदर कॉमन क्या है हमारी बैटरी, जिसका ईएमएफ क्या रहेगा सेम रहेगा। अगर सेम ईएमएफ रहेगा देन वी कैन राइट देयर दिस इक्वेशन इक्वल टू दिस इक्वेशन, सो बाय यूजिंग दिस वन देन वी कैन फाइंड देयर वैल्यू ऑफ द स्मॉल r। So small r, after this one we can write there 1/2. So in options 1/2 not given here, this one given here 0.5 ohm, here r we can write there 0.5, it's assigned it is ohm, that's why we can write there ohm. So these here wrong options, and your D will be right option 0.5 ohm with respect to this one question. So I hope you understood this question. Now see our next question. Resistance of the metal wire increase with increasing the temperature on account decrease in the free electron density, decrease in the relaxation time, increase in the mean path and mass number of the electrons. ओके, ये कह रहा है कि अगर रेजिस्टेंस को इंक्रीज किया जाए मेटल के अंदर, कीप इन माइंड मेटल के अंदर अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, दिस वन इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो मेटल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, नॉन मेटल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, सेमीकंडक्टर के ऊपर कैसा इफेक्ट पड़ता है। सो सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के अंदर सेम रिलेशन होता है, एंड इन मेटल कंडक्टर इट विल बी अपोजिट। ओके, अपोजिट कैसे कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है, इफ एनी कंडक्टर वी आर टेकिंग देयर, तो कंडक्टर के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं एक्सेस अमाउंट में होते हैं। सो एज वी विल इंक्रीज द टेम्परेचर इन द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, देन देयर कोलिजन विल बी इंक्रीज। कोलिजन क्या हो जाती है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या हो जाता है उनके अंदर कोलिजन ज्यादा होगी। अगर कोलिजन ज्यादा होगी तो क्या होगा, इंटरप्शन ज्यादा होगी, जिसकी वजह से क्या हो जाता है रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज हो जाता है, रेजिस्टेंस क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। सो इन कंडक्टर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए तो रेजिस्टेंस क्या कर जाता है इंक्रीज किया जाता है और आपकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, रेसिस्टिविटी इंक्रीज एंड कंडक्टिविटी विल डिक्रीज देयर इन
कंडक्टर, ओके। एंड इन सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर इट इज अपोजिट रिलेशन। इनके दोनों के अंदर क्या होता है, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या करता है, डिक्रीज करता है, और कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। तो यहाँ ये पूछ रहा है कि अगर रेजिस्टेंस को इंक्रीज किया जाए और विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस को इंक्रीज किया जाए तो कौन सा फैक्टर इफेक्ट में आता है। सो हियर वंस अबाउट टेलिंग अबाउट द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाए, नो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इट विल बी रिमेन सेम, जितने नंबर उस पे लाई कर रहे हैं कंडक्टर के अंदर वो तो उतने ही रहेंगे। सो डिक्रीज इन द रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम इज दैट स्मॉल टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट वी विल कॉल इट रिलैक्सेशन टाइम, ओके। सो अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज करते हैं तो ये टाइम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, दिस टाइम विल बी डिक्रीज देयर इन दिस केस, ओके। डिक्रीज हो जाएगा मतलब कोलिजन क्या होगा, जल्दी जल्दी होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है। तो आपका रिलैक्सेशन टाइम क्या करता है, डिक्रीज करता है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद आवर रेजिस्टेंस एंड योर टेम्परेचर, वी कैन से। सो दिस वन इज अ राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड देयर। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन सी हियर, a cell of EMF E and internal resistance of R is connecting with a variable resistance your capital R and the graph of the terminal potential V and R. This one is an important question beta. So here inactive field, here 4 graphs are given, यहाँ पे 4 ग्राफ गिवन, आपको इनमें से ये देखना है कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन के लिए, क्लियर। तो V और R के लिए रिलेशन है और EMF सेल ऑफ EMF, अब हमें पता है EMF सेल की इक्वेशन क्या होती है, EMF ऑफ द सेल, in last question also we have done this equation, EMF of cell या battery, we can write there E equal to your V plus IR, clear, E equal to V plus IR. So E we can write there IR plus here, this we can write here. So here we can write this one here, I we can take common, then R plus here, this one is here V only, okay. So here E equal to this one, there we should know about this one graph, then how we can find this graph, that is this one here increasing, but initially its value is 0 and after some time it is going to the constant. Now here this one is directly proportional, V is directly proportional to R only, and V is inversely proportional to R, their decreasing slope is there, and here is a slantly, that is decreasing E and R relation. So this one how we can justify their answer. So we know about this one, I equal to here E by R plus R, we can write it from here, we can find I. So potential के लिए निकालना बेटा, potential no, by using Ohm's law, as we know about this one, by Ohm's law we can say there V equal to your IR, we know about this one, Ohm's law, V equal to IR. So here we can put value of I here, तो V क्या आ जाएगा, पोटेंशियल और R का रिलेशन हमें फाइंड करना है जिसके अंदर EMF E भी गिवन है, तो इसलिए हमने क्या निकाला, I फाइंड किया, I की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो इधर पुट करने पे क्या आ जाएगा, E R प्लस here R, दिस वन R, क्लियर। अब R को क्या इसके डिवाइड में ला सकते हैं, here if we can write there, here condition 1, if यहाँ पे क्या है, 0 0 की कंडीशन है, if R इक्वल टू 0, अगर R हमारा 0 है तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस 0, देन मल्टीप्लाई दिस वन विद 0, देन V also becomes your 0 only, तो V भी क्या हो जाएगा, देन V इक्वल टू E प्लस R प्लस R, क्या इक्वेशन आ गई हमारे पास, ये इक्वेशन आई है, तो R अगर 0 हो रहा है देन इट बिकम्स your 0 only. So here we can write there, so R 0 tends to the V also becomes here 0 only, this one first condition. तो आपका ये ग्राफ तो पॉसिबल नहीं क्योंकि इनिशियल पॉइंट क्या है, अगर बिकम R 0 then V also should be 0, this also not possible क्योंकि यहाँ तो स्टार्ट हो रहा है इधर से, तो पॉसिबल ही नहीं है। This may be possible because on this one point both are 0 0 initially, V और R दोनों 0 है, इधर भी V और R दोनों 0 है, इधर नहीं है, having some value initially, that's why this also impossible graph। तो इन दोनों में से
चेक करना पड़ेगा आउट ऑफ दीज टू विच वन राइट। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा कंफर्म हो गया। सेकंड पॉइंट हम इनफाइनाइट के लिए ले लेते हैं, दिस वन गोइंग ऑन टिल द इनफाइनाइट पॉइंट। सो इफ आर वी आर टेकिंग इनफाइनाइट, आर रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट तक इंक्रीज कर दिया जाए, देन व्हाट इज द चेंज इन द वी। सो वी हाउ इट विल बी चेंज, वी की इक्वेशन क्या है हमारे पास, v equal to this one, now this we can change like this one, v by r plus here r by r। so यहाँ से कैंसिल करके r to r कैंसिल आउट, then here equation will be e r by r plus here 1, ये फैक्टर आ गया हमारे पास। ओके तो यहाँ पे r को अगर इनफाइनाइट कर दिया जाए, देन इनफाइनाइट, देन इट विल बी योर इनफाइनाइट, इसको डिवाइड करेंगे, देन इट विल बी योर 1 only, so e divide by your 1 only, infinites को divide करेंगे then 1, then here will become equal to v equal to your e, क्या आ जाएगा हमारे पास, v equal to e, means here we can say, show your r becomes your infinite, then v becomes equal to your e only। so constant value means after the infinite then we are getting constant value, तो constant value किस केस में आ रही है, इधर आ रही है कि इधर आ रही है। so in that case here after some time as going this one value, then it will be becomes your constant, क्या होगी, constant value होगी, means its value is becomes equal to your emf only when r becomes your infinite। okay जब r infinite हो जाता है, so which one graph is possible graph here, first one is right option of this question, first graph will be right। okay so by using this one like this one we will check their value which one is right or wrong with respect to your r value, then we will check value of v। okay now see our next question, here beta first will be right option। now next here question number 4, here element of the heater is rated pv, क्वेश्चन के अंदर हीटर की वैल्यू गिवन है, एक हीटर गिवन है जिसकी पावर आपको गिवन है P और पोटेंशियल गिवन है V। इफ इट इज डिस्कनेक्टेड अक्रॉस अ सोर्स ऑफ द वोल्टेज 172, then here voltage we are using this one, here not 172, here V by 2, here voltage is wrong, this one here V by 2, then here power will be but this power we have to find out। अगर ये कह रहा है कि क्वेश्चन के अंदर कि एक हीटर है जिसकी पावर हमने यूज कर रखी P पावर इनिशियली एंड वोल्टेज क्या है, V वोल्टेज है, सेम हीटर वी आर कनेक्टेड विद अस, हीटर सेम है, ओके वो जो एलिमेंट है वो सेम है जिसका सेम रेजिस्टेंस है, क्लियर। अगर इस केस में अगर हम R रेजिस्टेंस लेके चले तो सेकंड केस में भी जो रेजिस्टेंस है वो हमारा क्या है, R ही है, ओके तो अगर बट वोल्टेज क्या कर दिया हमने V by 2, अभी कह रहा वोल्टेज को V by 2 कर दिया जाए तो पावर में क्या चेंज आएगा, P डैश वी आर राइटिंग देयर, हियर V डैश वी कैन राइट देयर, क्लियर। हमारी चेंज्ड वोल्टेज क्या V by 2 है, देन व्हाट इज अ न्यू पावर, पावर में क्या चेंज आएगा अगर हम इस टर्म को चेंज कर रहे हैं। सो यूजिंग दिस वन देन वी नो अबाउट दिस वन रिलेशन बिटवीन पावर, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। Here rate of work done is known as power, W by T, power क्या होती है, rate of doing work is known as power, W by T। so using this one then we can write their different formula of power, I square R, V square by R and VI, these are the different relation of the power। तो इनके लिए out of these formulas which one we can find there। अब हमें पता है कि अगर हम वोल्टेज चेंज करेंगे तो करंट भी वेरी करेगा, क्लियर। अगर वोल्टेज चेंज करें तो करंट भी वेरी करेगा, बट यहाँ पे हीटर चेंज नहीं हो रहा तो रेजिस्टेंस तो क्या रहेगा, सेम रहेगा ना हमारा दोनों केस में, यहाँ भी और यहाँ भी। बट करंट क्या है, अगर यहाँ पे I1 करंट है तो करंट क्या हो जाएगा I2, तो यहाँ से तो दोनों के रेशियो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि I की वैल्यू हमें पता ही नहीं। बट R हम एज्यूम कर सकते कि अगर एक हीटर का जो रेजिस्टेंस R है तो उसकी वोल्टेज चेंज करने के बाद भी उसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, R ही रहेगा, बिकॉज सेम एलिमेंट्स आर देयर, ओके। So this one current one relation we can't use, this formula also we can't use, क्योंकि करंट हमारा वेरी करेगा सेकंड केस के अंदर, यहाँ पे कुछ करंट है तो यहाँ भी कुछ करंट होगा, बट वी डोंट नो अबाउट दिस वन वैल्यू ऑफ द करंट, दैट्स व्हाई वी कांट यूज फॉर्मूला ऑफ द करंट। सो वी विल यूज देयर पावर P इक्वल टू यार V स्क्वायर बाई R, पावर क्या हो जाएगी P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R देयर, ओके। सो P वी कैन राइट देयर P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, then in that case this one your first equation we can write there,
नाउ सेकंड केस जिसके अंदर हमें न्यू पावर फाइंड करनी, P डैश इक्वल टू योर V डैश स्क्वायर बाय योर R। क्लियर, ये 12 नहीं है बेटा, V डैश है, दिस वन डैश, ध्यान रखना। तो V डैश हमारे पास क्या है, V बाई 2। व्हाट इज V डैश, V बाई 2 स्क्वायर डिवाइड बाय योर R, V बाई 2 स्क्वायर बाई R। ओके, सो V स्क्वायर क्या आ जाएगा, V स्क्वायर बाई योर 4R। अब हमें पता है V स्क्वायर बाई R हम भी तो निकाला था फर्स्ट इक्वेशन में, P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। ओके, सो V स्क्वायर बाई R यहाँ से क्या आ जाएगा, P डैश इक्वल टू यार 1/4 V स्क्वायर बाई R P, P डैश इक्वल टू P बाई 4। ओके, then here this one here changed new power, that is a depend upon the initial power, it will be your 1/4। मीन्स जब हम इसकी पोटेंशियल हीटर की वोल्टेज को अगर चेंज करेंगे V/2 तो उसकी पावर में क्या चेंज आएगा, इट विल बी 1/4 ऑफ द इनिशियल पावर। इनिशियल जो पावर P थी उसका क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी दिस वन योर न्यू पावर। सो हियर चेक विच वन इज राइट, we have to find out new power only, so this one wrong, P 2P, P by 2, this one is the right option, P by 4। so P by 4 is our right one option here, new power this one। now see second one, next one question number 5, a cell of the internal resistance R is connected across the external resistance R, then supply the maximum current। अब इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि मैक्सिमम करंट किस कंडीशन में फॉर्म होगा, अगर हम क्या करें, इंटरनल रेजिस्टेंस को जो कनेक्ट कर रखा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, और सप्लाई करंट की सप्लाई को अगर मैक्सिमम कर दिया जाए तो R पे क्या चेंज आएगा। सो हियर वी नो अबाउट दिस वन, E इक्वल टू योर V प्लस IR, यस, E इक्वल टू V प्लस IR, टोटल EMF इक्वल टू पोटेंशियल प्लस IR। सो हमारे पास क्या है, करंट मैक्सिमम करने के लिए कह रहा है, करंट मैक्सिमम कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट कर रहा है। क्लियर, सो हियर वी कैन राइट देयर E इक्वल टू योर IR प्लस योर IR। सो I वी कैन राइट देयर R प्लस R। क्लियर, E दिस वन। ओके, देन E डिवाइड बाय योर R प्लस R। ये इक्वेशन बेटा अच्छे से लर्न कर लेना, दैट इज इंपॉर्टेंट इक्वेशन, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ पोटेंशियल। ओके, देखा मोस्टली क्वेश्चंस में यही इक्वेशन यूज हो रही है, दैट सो लर्न दिस वन इक्वेशन प्रॉपर्ली। सो E बाई R प्लस R देन इट इज इक्वल टू योर I ओनली। तो ये कह रहे कि करंट को मैक्सिमम कर दिया जाए, कि मैक्सिमम मतलब अगर इसको इनफाइनाइट एज्यूम कर लिया जाए कि करंट हमारा इनफाइनाइट हो रहा है, तो कब इनफाइनाइट होगा, व्हेन वी कैन टेक वैल्यू ऑफ R इज मिनिमम, यस और नो, और मिनिमम हम क्या ले सकते हैं, देन इट विल बी योर 0 ओनली। अगर इसको 0 रख दें देन वी कैन राइट देयर करंट बिकम्स योर इनफाइनाइट, क्योंकि हमें पता है किसी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं देन इट विल गिव अस इनफाइनाइट ओनली। क्या देती है, इनफाइनाइट देती है। क्लियर, सो हियर cell of internal is connected with this one, then we can take this one R becomes your 0, then your I becomes your infinite। so which one condition satisfy for this equation, so here will be this one option, when we will take R equal to external resistance को R 0 कर दिया जाए then current हमें क्या देगा, maximum value देगा। so D will be our right option of this one question। now see our next question, question number 6, then ratio of the current density, ratio of your current density and the electric field is called, ratio of the current density and electric current density, we have to current density, your symbol is J, and electric field is your E, then current density per unit electric field is known as this one simple direct definition of your mobility, what, mobility। मोबिलिटी क्या होता है, दैट इज अ फ्लो ऑफ द आयंस, फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, जितना ज्यादा फ्लो होगा उतनी ज्यादा मोबिलिटी होती है। क्लियर, तो मोबिलिटी क्या कह सकते हैं, दैट इज अ करंट डेंसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम अप्लाई करेंगे फ्लो भी उतना ही ज्यादा होगा। सो दिस वन सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट डेफिनेशन ऑफ द मोबिलिटी, आई थिंक यू कैन डू दिस वन। नाउ नेक्स्ट वन, for the fixed potential difference applied across conductor and drift speed for the free electrons doesn't depend upon which factor। अगर हम फिक्स्ड पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें अक्रॉस द कंडक्टर और ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स डजंट डिपेंड, किस फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती,
तो मास पे डिपेंड, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दिस कंडक्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, लेंथ ऑफ द दिस वन एंड टेम्परेचर ऑफ दिस वन. क्लियर? So fixed potential difference, अगर potential difference means external potential of the battery across this one, then drift speed V equal to your, we have done this one relation, I equal to NEAVD. Yes, so drift velocity VD equal to your I by NEA. सो किस पे डिपेंड नहीं करती, दिस इज नॉट डिपेंड अपॉन योर लेंथ पे, एरिया पे डिपेंड करती है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नंबर n पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, क्योंकि टेम्परेचर हमें पता है कि अगर इंक्रीज किया जाए तो रेजिस्टेंस क्या करता है, इंक्रीज करता है, और ड्रिफ्ट स्पीड भी उसके साथ वेरी करती है r के साथ. सो हियर नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, दिस वन. ओके, नाउ सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. Two equal EMF are connected in series. दो equal EMF means two batteries are we are taking there connected in series. Here E equal कह रहा है तो दोनों का EMF हम क्या ले लेते हैं, E ले लेते हैं. Connected in series. Next में देखो, this combination is turned connected to the external resistance R. इसको क्या external resistance के साथ connect कर दिया R के साथ. Then internal resistance of two sources are R1 R2. दोनों सोर्सेज का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R1 और R2. इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2. क्लियर? सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस R2 इज 0. ओके, R2 के अलोंग जो हमारा पोटेंशियल है, लेट वी आर टेकिंग V2, दिस वन बिकम्स 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ R. R हमें निकालना है, कैपिटल R हमें निकालना है. तो कैसे निकालेंगे, देखो क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, दो बैटरी गिवन है जिनका दोनों का सेम EMF गिवन है, और सेम EMF गिवन है, तो सीरीज के अंदर वी कैन राइट देयर इन सीरीज, गिवन ऑलरेडी इन सीरीज. ओके, इन सीरीज देन वी कैन राइट देयर टोटल EMF इक्वल टू योर 2, total EMF equal to your 2E. Okay, then this one connected with our resistance R. So R total we can write there, total resistance भी हम क्या लिख सकते हैं इसके लोग, R plus here two more sources whose resistance R1 R2, इनका भी total resistance हमने निकाल दिया R1 R2, ये निकाल दी. इसके बाद क्या करना में, यहां से क्या निकाल लेंगे, करंट वी कैन फाइंड I equal to your 2E by using your Ohm's law, V equal to IR, then I equal to V by R. 2E R plus here R1 plus R2. This one our total current by using this one. Now we can write there, क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, उसके बाद कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग दिस वन R2, इंटर रेजिस्टेंस R2 के अंदर क्या हो रहा है, V2 इज इक्वल टू आवर 0 ओनली, V2 क्या हमारा 0 है. देन फाइंड देयर वैल्यू ऑफ R, तो कैपिटल R हमें फाइंड करना है. तो कैपिटल R के लिए हम क्या करेंगे, इफ गिवन, इफ V2 इक्वल टू यर 0, सेकंड सेल के अलोंग V2 क्या हमारा 0 है, सो V2 इक्वल टू यर I टोटल करंट एंड अक्रॉस V2 आवर रेजिस्टेंस इज यर R2. V2 क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है ना अलोंग द सेकंड बैटरी, तो सेकंड बैटरी के अलोंग हमारा रेजिस्टेंस क्या है R2, तो इसी के अलोंग इक्वेशन ले रखिए. तो V2 हमारा क्या कह रहा है 0, V2 क्या कह रहा है, अगर हम 0 ले लिया जाए तो वैल्यू ऑफ R क्या रहेगी, तो I हमने निकाला, यहां से क्या आ गया 2E डिवाइड बाय योर R प्लस R. क्लियर? टोटल EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू योर रेजिस्टेंस अलोंग द सेकंड बैटरी R2. Clear? So here this one is our V2 equal to this, we can write here. Now by using this one here, total EMF along this one, then after this one EMF we can write, wait, total EMF E equal to, sorry, total EMF E equal to your
V plus your I R. Okay, so from here we solved this one here. V2 along this one here, V2 equal to, we can write there 0 only, this one V2 plus here I R2. This one complete equation of the EMF. So V2 becomes here 0 plus here I R2. Clear? So E equal to here 0 we used there because given already in our question V2 equal to 0. Okay, now I we solved there, I equal to here 2E divide by your R plus R1 plus R2. Clear? So here it will become your R2. Now from here E to E cancel out. Here left 1, तो इसको इधर ले जा सकते हैं. इधर लाने के बाद क्या हो जाएगा? R plus R1 plus R2. Then here left 2 small R2. So here R plus R1 2R2 minus here R2. R plus R1 equal to here R2. बचा? क्लियर? अब इसको इधर ले जाएंगे तो कैपिटल R की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? R2 माइनस R1. सिंपल, यही निकालना था हमें कैपिटल R. देखो बेटा वही इक्वेशन यूज किया जो क्वेश्चन के अंदर गिवन थी. क्या क्या गिवन था कि दो बैटरी है जिनका ईएमएफ क्या है? इक्वल है. दोनों बैटरी का ईएमएफ क्या है? इक्वल. विद रिस्पेक्ट टू दिस बैटरी योर EMF, this one your R1 with respect to this one resistance your R2. So ये कह रहा है कि दोनों को सीरीज के अंदर कंबाइन करा था. सीरीज के अंदर कंबाइन करेंगे तो क्या लिख देंगे? E1 plus E2 and E1 also E and E2 also E. Then total we can write there 2E only. So total resistance हमें with respect to find करेंगे. total resistance क्या कौन कौन सा given है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R given है और दो इंटरनल रेजिस्टेंस given है R1 और स्मॉल R2. So total resistance हमने फाइंड कर दिया ये. उसके विद रिस्पेक्ट टू ओम्स लॉ हमने यूज किया. ओम्स लॉ के यूजिंग करते हुए हम क्या निकाल देंगे? I इक्वल टू हमारा टोटल EMF बाय योर टोटल रेजिस्टेंस. सो टोटल EMF हियर 2E एंड टोटल रेजिस्टेंस हियर दिस वन. अब इफ V2, अब देखो यहाँ पे सेकंड नेक्स्ट लाइन में जो कंडीशन गिवन है वो यूज करेंगे कि R2 के अलोंग अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ दी R कैपिटल R की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो ये कंडीशन हमने अप्लाई की. इसके बाद क्या है? दिस इज द रिलेशन फॉर द सेल. सेकंड सेल के लिए इक्वेशन क्या आ जाएगी? दिस वन इक्वेशन फॉर सेकंड सेल E इक्वल टू योर V2 प्लस योर I R2. तो V2 क्या हमारा 0 है, देन I R2. So 0 this one here, E to E cancel out, then R2 this one. So R2 this equal to this, then your this one. इसको subtract करेंगे R2, then your R2 minus your R1. So which one is right option out of this? This your wrong, and R2 minus R1. This one is the right option of this question. Second one, remaining will be wrong. Now next one, C question. If N, E, tau and M have usual meaning, N यूजुअल मीनिंग जो भी है आपके बुक में मीनिंग है इनके. एन क्या होता है? नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. एंड टाउ क्या होता है? टाउ इज अ रिलैक्सेशन टाइम. रिलैक्सेशन टाइम मींस टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एनी कंडक्टर. दैट इज योर टाउ. एंड एम इज मास, यूजुअल मीनिंग. देन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज अ लेंथ एल एंड एरिया ए गिवन बाय. तो कह रहे रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करेगा? ओके. Then resistance of the wire, then resistance, how this one is a direct formula of the resistance, depend upon these factor, that will be a this one B option. Okay, complete direct derivation है बेटा. resistance हमने निकालना है and using this one resistance R equal to your ML divide by N E square tau your A. This one direct definition, and remaining this one as you compare with R equal to rho L by A, then resistivity rho will be equal to M and E square by tau. This one is your resistivity. So learn this formula. This one direct formula of resistance and resistivity. How is it depend upon the relaxation time? Relaxation देखो ये फर्स्ट में भी सेकंड क्वेश्चन आया भी था आपका. रिलैक्सेशन टाइम पे रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है? सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद इट. इनवर्सली डिपेंड करता है इसके साथ. अगर आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या करेगा? डिक्रीज करता है. इंक्रीज करेगा तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा. इसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सो दिस वन इज सेकंड इज बी इज राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन. Given option. Now
Next question, our question number 10. A car battery is charged by a 12 volt. एक कार बैटरी है जिसको चार्ज किया गया है 12 वोल्ट सप्लाई के साथ. वोल्टेज क्या गिवन है 12 वोल्ट. एंड एनर्जी स्टोर इन इट 7.20 into 10 raised to power 5 जूल. जिसकी एनर्जी क्या गिवन है 7.2 into 10 raised to power 5 जूल. तो कह रहा है कि हाउ मच चार्ज विल बी पास्ड थ्रू दी बैटरी. चार्ज हमें निकालना है, तो इसके लिए पहले हमें रिलेशन पता होना चाहिए कि चार्ज और पोटेंशियल और एनर्जी में एनी रिलेशन इज देयर और नॉट. सो फर्स्ट वी आर राइटिंग देयर गिवन फैक्टर्स. क्या क्या गिवन आपको? गिवन फैक्टर्स है V इक्वल टू योर 12 वोल्ट एंड एनर्जी इक्वल टू योर एनर्जी वी कैन राइट देयर वर्क डन ऑल्सो एंड E also we can write there 7.20 into 10 raised to power 5 जूल. ये आपको वर्क डन गिवन है. उसके बाद क्या निकालना है? चार्ज निकालना है. क्या निकालना? चार्ज निकालना. ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास? वर्क डन. एज वी नो अबाउट दिस वन, योर पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज. नो अबाउट दिस वन डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल. सबको पता है डेफिनेशन और चार्ज में क्या रिलेशन होता है. डेफिनेशन होती है सीधी. डेफिनेशन क्या होती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. वर्क डन per unit charge means any charge is coming from one to another point, from infinite to reference point, then how much work is done by that charge is known as the potential of this charge. So potential V we can write there Q by T only. So here charge we have to find out. तो charge कैसे निकल जाएगा? Q equal to W by V only. क्या निकल जाएगा? W by V only. तो work done means we can write it energy only. क्योंकि वर्क डन क्या होता है? हमेशा एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है. देन हियर 7.20 into 10 raised to power 5 only and divide by your potential. पोटेंशियल के चार्ज पोटेंशियल ही निकालना. देन पॉइंट हियर, तो यहाँ से रिमूव कर देंगे दिस 2 पॉइंट. देन हियर वी कैन राइट देयर दिस वन 720 into your 1200 into 10 raised to power 5 गिवन है. तो दो एक जीरो से जीरो कैंसिल आउट, एक जीरो से इधर 10 raised to power 4 बचेगा. इधर इससे कैंसिल करेंगे तो 6 into 10 raised to power 4 कूलम. इट्स ऐसा यूनिट इज कूलम ओनली. तो ये तो वैसे ही रॉन्ग है बेटा. बी और सी तो वैसे ही आप देख सकते हो क्योंकि इनकी यूनिट क्या गिवन है? जूल गिवन है. चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम होती है. तो ये सबसे इजी मेथड है कि अगर 4 ऑप्शन गिवन है सबसे पहले उनकी यूनिट चेक कर लो. चार्ज अगर निकाल रहे हैं तो उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? कूलम होनी चाहिए. तो यहाँ पे 2 की तो यूनिट क्या गिवन है आपको? जूल गिवन है. तो ये तो वैसे ही रॉन्ग ऑप्शंस हो गए. 2 बच रहे, एक बार कूलम और ईयर दिस कूलम. तो इन दोनों में से आपको चेक करना कौन सा राइट ऑप्शन होगा. ओके, तो यहाँ से हमने निकाला कैलकुलेशन करके. तो क्या आ रहा है? 6 into 10 raised to power 4 कूलम. दिस वन इज फर्स्ट विल बी राइट ऑप्शन. Okay, now see our next question. Here for a metallic conductor, then correct representation of your R with your temperature. R with your temperature मेटालिक के लिए. अब ये तो हमने पता है क्या होता है कि R का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है. क्लियर? टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस बढ़ता है. क्यों बढ़ता है? क्योंकि कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मूविंग इलेक्ट्रॉन, दैट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर एज कंपेयर टू दी इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर. इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के कंपैरिजन में कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज्यादा मोबाइल होते हैं, ज्यादा एक्टिव होते हैं. सो एज वी विल प्रोवाइड सम मोर टेम्परेचर टू देम, अगर इनको और भी ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? देयर विल बी मूव हाईली मूविंग हियर एंड देयर. ओके, तो उनके बीच में कोलिजन बढ़ जाएगी. कोलिजन बढ़ेगी तो क्या होगा? रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा. और कोलिजन बढ़ेगी, कोलाइड करेंगे एक साथ तो क्या करेंगे? एक दूसरे को टक्कर लगा के रेसिस्ट करेंगे मोशन को. तो रेजिस्टेंस क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं. तो दिस वन विल बी wrong, this also wrong beta. Here will be this one type of the graph will be for your metallic conductor when your R will be directly proportional to the T. Okay, but initially it is your 0 only. Okay, as we are taking there some temperature, because if we are not giving temperature then also having some resistance, not zero resistance. ये नहीं कह सकते कि अगर टेम्परेचर अगर आपका 0 है तो रेजिस्टेंस 0. नो, अगर टेम्परेचर नहीं प्रोवाइड करवा रहे तब भी उनका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है. सो दिस वन फर्स्ट विल बी राइट ऑप्शन. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. दिस वन, a steady current flow through the metallic wire
whose area of cross section is A, increasing continuously from one end of wire to the another end. Then magnitude of the drift velocity VD for this one. So drift velocity और इसमें क्या relation होता है? Then as we know this one, I equal to NEA VD. This is the relation between current and drift velocity. And with the area, here graph is given drift velocity and area. So drift velocity and area में क्या relation हो जाएगा? Both are inversely proportional. So here as we will take their I equal to NEA equal to your VD. So by using this one, we can say VD is inversely proportional to the area. So check which one is a satisfy. Here this one directly proportional graph, constant one graph, this one also your constant. Here will be this one your inversely proportional graph. This one will be right option. So thank you for watching today our video. Now in next we will see our next PYQ of this chapter.